morning, everyone. Welcome you all. This is chapter number 6, manufacturing industry, and we are going to start mineral-based industries. Till now, we have completed the agro-based industries, that is cotton textile industry, jute industry, and sugar industry. So let's start the topic mineral-based industry. Okay, what is mineral-based industries? That use minerals as a raw material. क्या होती हैं? That use minerals as a raw material. For example, iron and steel industry, aluminium smelting, कॉपर इंडस्ट्री एटसेट्रा. सो वो इंडस्ट्रीज जो मिनरल्स को एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं, उन इंडस्ट्रीज़ को हम क्या बोलते हैं? एल्यूमिनियम. उन इंडस्ट्रीज़ को हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं. एग्जांपल आपको बता देना, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री, कॉपर स्मेल्टिंग इंडस्ट्री. सो दे आर एग्जांपल ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, ऑफ विच आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. Then we will discuss the aluminium smelting industry. So first we are going to start iron and steel industry. Okay, क्या देखिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की इम्पोर्टेंस है. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. Why iron and steel industry is important? Just because it is a key industry. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्या है? It is a key industry, or you can say basic industry. As I already told you about the key industries and basic industries whose product used as a raw material in another industry, they are known as key industry or basic industry. जिन इंडस्ट्री का प्रोडक्ट होगा, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री यूज एज ए रॉ मटेरियल इन अनदर इंडस्ट्री, सो सपोर्ट करते हैं दूसरी इंडस्ट्री को, सो दे आर नोन एज द की और बेसिक इंडस्ट्री. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ऑल्सो नोन एज द हैवी इंडस्ट्री, heavy industry, just because the raw material used in this industry and the product of this industry is bulky and heavy. Okay, bulk में होगा और heavy product होगा, so they are known as the heavy industry also. Okay, then third point is they are weight losing industry. Weight losing industry, just because they use raw material, weight losing raw material. Okay, weight losing raw material को यूज़ करते हैं. कौन से weight losing raw material को ये यूज़ करते हैं? iron ore is a weight losing raw material. Then limestone, then coal. So they are weight losing raw material. That's why this industry is also known as the weight losing industry. So the best site for this industry, best location for this industry is, location क्या होगा? ठीक है, इस तरीके से एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है. व्हाट इज द बेस्ट साइट और बेस्ट लोकेशन फॉर द टू एस्टेब्लिश द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री? सो इट इज इन द एरिया ऑफ raw material, in the area of, you can say in the area of raw material, or the raw material can be arranged at cheap rate. Okay, तो या तो इन द एरिया ऑफ रॉ मटेरियल में उसको इस्टेब्लिश कर दो, या वहाँ पे इस्टेब्लिश कर दो जिस जगह पे आपको ये रॉ मटेरियल जो है ये चीपेस्ट रेट पे अवेलेबल हो जाए. सो दैट्स वाई द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द weight losing industry, or this is the best location to establish the iron and steel industry. Okay, raw material used in this industry, raw materials क्या होंगे? iron ore is the first, iron ore, then coal, coking coal, fourth is limestone,
then manganese, okay, etc. So these are the important raw material used by this industry. Clear? नेक्स्ट इसमें कुछ और इम्पोर्टेंस हैं कि आयरन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री वो छोटा नागपुर प्लेट्यू में ही क्यों स्टेब्लिश है, तो उन सबको देखते हैं। नेक्स्ट है कि एमसीक्यूज के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इन द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आयरन ओर, कोकिंग कोल एंड लाइमस्टोन, ओके, आयरन ओर, कोकिंग कोल एंड लाइमस्टोन यूज इन द रेशियो ऑफ 4:2:1, ओके, 4:2:1 के रेशियो के अंदर इनको यूज में लिया जाता है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर योर एमसीक्यू, तो आपको ध्यान में रखना है। और क्या है ये, फर्स्ट फॉर आयरन ओर, देन कोकिंग कोल, देन लाइमस्टोन, ठीक है, ये तीनों भी आपको ध्यान में रखना है। Then the per capita consumption in the India is only 63 kilogram per annum per person, okay, 63 kilogram per annum per person। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है, that consumption of the steel, okay। इससे क्या होता है कि किसी कंट्री की प्रोस्पेरिटी के बारे में पता चलता है, it is the indicator of country's prosperity, okay, but where is the in the world it is 208 kilogram per person पर एनम, ओके। सो देखिए कितना ज़्यादा गैप है, ओनली 63 किलोग्राम इन इंडिया और इन द वर्ल्ड इट इज़ 208 किलोग्राम पर एनम पर पर्सन, ओके। सो इम्पोर्टेंट है, इंडिया अभी भी लैक कर रहा है इन कंजप्शन ऑफ द स्टील। इसी के बेस पे क्वेश्चन भी आपके बुक में गिवन है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। द प्रोडक्शन एंड द कंजप्शन, द प्रोडक्शन एंड द कंजप्शन ऑफ द आयरन एंड स्टील इज़ द इंडेक्स ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट, ठीक है। जो कंजप्शन है और प्रोडक्शन है स्टील का, आयरन एंड स्टील का, वो एक इंडेक्स है, ठीक है। क्या एक शो करता है, कंट्री के डेवलपमेंट को शो करता है, एक्सप्लेन, इस तरीके से आपको पूछ सकता है। तो इसके बारे में यही चीज़ें आपको एक्सप्लेन करना है, जस्ट बिकॉज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द की और बेसिक इंडस्ट्री, इट सपोर्ट मैनी अदर इंडस्ट्रीज। एग्जाम्पल पुट कीजिए, एग्रीकल्चर को प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर सभी को ये सपोर्ट करता है, ठीक है। इट प्रोवाइड रॉ मटेरियल इनटू द अदर सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। एग्जांपल दीजिए कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है, मशीन एंड टूल इंडस्ट्री है, इन सबको ये क्या करता है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है, दैट इज स्टील और एंड आयरन। देन एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको ये सपोर्ट करता है। तो इस तरीके से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्या करता है, सपोर्ट करता है मैनी अदर इंडस्ट्रीज एंड अदर स्पीयर्स ऑफ द इकोनॉमी। सो इट इज़ द इंडेक्स ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट, ठीक है। देन लार्ज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको कनेक्ट करते हुए आपको इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो पहला तो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा रहा है, देन एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा रहा है, जीडीपी में इसका शेयर होता है। तो वो सब चीज़ें जो किसी इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, वो सब बातें आप इसके अंदर एक्सप्लेन करोगे। देन सेकंड क्वेश्चन दिया मैंने आपको बताया था, वेयर शुड द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बी आइडियली लोकेटेड। तो इसका आंसर क्या करोगे, कहाँ पे आइडियली लोकेटेड होगा। लोकेशन के लिए मैंने आपको बताया था, लोकेशन के लिए फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एंड इन दिस इज द वेट लूजिंग इंडस्ट्री। सो वेट लूजिंग इंडस्ट्री के लिए जो आइडियली लोकेशन होती है, दैट इज़ द एरिया ऑफ रॉ मटेरियल, ओके। तो इसमें आप एक्सप्लेन करोगे, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द वेट लूजिंग इंडस्ट्री, इट डिपेंड्स ऑन द वेट लूजिंग रॉ मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल बताइए, आयरन ओर इज द वेट लूजिंग, coal is a weight losing, limestone is a weight losing. So the ideal location of the iron and steel industry in the area of raw material, where we found the raw material at cheapest rate, okay. So this is the ideal location for the iron and steel industry. Then आपकी बुक में गिवन है मिनी स्टील प्लांट एंड इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, इनके बीच में डिफरेंस आपसे पूछ सकता है इन 3 मार्क्स, ओके। सो मिनी वर्ड से और इंटीग्रेटेड वर्ड से पता चलता है, ठीक है। दे आर स्मॉल इन साइज, दे आर लार्ज इन साइज। इंटीग्रेटेड होगा, मिनी स्टील प्लांट having small production, and this is the integrated steel plant having large area, okay. It expands in the large area and having all the unit of production in a single area, ठीक है। जितने भी प्रोडक्शन की यूनिट होंगे, जितने भी टाइप का प्रोडक्शन होगा, वो एक सिंगल यूनिट के अंदर होगा, एक सिंगल कैंपस होगा, एक प्रीमिसेस होगा, क्लियर। So that's why it is known as the integrated. Then small in size, small production, size भी कम होगा, production भी कम होगा। इधर large size, large production, clear। It use the steel scrap को यूज़ करता है,
ठीक है। जो भी लोकेलिटी के अंदर स्क्रैप कलेक्ट किया जाता है उसी स्क्रैप को स्मेल्टिंग प्रोसेस से स्मेल्ट करके और उसको रिफाइन करके देन उससे प्रोडक्शन करता है। एंड स्पॉन्ज आयरन, ओके, जो लो क्वालिटी का आयरन होता है, स्पॉन्ज आयरन जो होता है, ठीक है, उसको ये यूज़ में लेता है। देन स्मॉल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा, साइज में स्मॉल होगा तो स्मॉल एम्प्लॉयमेंट होगा। इधर ये बेस्ट क्वालिटी का आयरन और यूज़ मिलेगा एंड द लार्ज क्रिएट लार्ज एम्प्लॉयमेंट। एंड लास्ट एक मेंशन और कर सकते हो पॉइंट इसमें आप, मिनी स्टील प्लांट फुलफिल द डिमांड ऑफ लोकेलिटी बट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट फुलफिल द डिमांड ऑफ लोकेलिटी एज वेल एज द इंटरनेशनल डिमांड। क्लियर? तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं बिटवीन द मिनी स्टील प्लांट एंड इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट। मिनी स्टील प्लांट इज द स्मॉल इन साइज, स्मॉल प्रोडक्शन एंड लार्ज प्रोडक्शन एंड लार्ज इन साइज। इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में लिखेंगे स्टील स्क्रैप, स्पॉन्ज आयरन, ये सब यूज लेता है मिनी स्टील प्लांट एज कम्पेयर टू गुड क्वालिटी ऑफ आयरन और यूज इन द इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट। ओके, नेक्स्ट देखिए, लास्ट में देखिए ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द एमसीक्यूज। सेल क्या है? एक अपेक्स बॉडी है, ठीक है, एक पीएसयू है विच कंट्रोल द 7 to 8 इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, ठीक है। टोटल 5 इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स हैं जिनको ये कंट्रोल करता है और देन 3 अदर स्टील प्लांट्स हैं, स्पेशल स्टील प्लांट्स, उनको भी ये कंट्रोल करता है और कुछ स्मॉल स्टील प्लांट्स हैं उनको भी कंट्रोल करता है। तो टोटल ऑलमोस्ट 10 to 11 प्लांट्स हैं जिनको ये कंट्रोल करता है। दैट इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके, एस्टेब्लिश हुआ था 19 जनवरी 1954 को HAL हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के फॉर्म में एस्टेब्लिश हुआ था। देन 1974-75 के पास में इसको चेंज कर दिया गया, एक PSU बना दिया गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। HSL इस्टेब्लिश हुआ था मेनली रावरकेला स्टील प्लांट को कंट्रोल करने के लिए, बट उसके बाद में जो जितने भी इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स हैं उनको सेल के अंडर एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। क्लियर? तो सेल इज ए अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन विच इज कंट्रोलिंग द इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स इन इंडिया। सो दिस इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्लियर? लास्ट में 2 क्वेश्चन हैं, इनके साथ हमारा जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है वो कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट जो है, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ध्यान में रखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई छोटा नागपुर प्लेट्यू हैव लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील प्लांट। इंडिया के अंदर जितने भी इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स हैं, ठीक है, उनमें मैक्सिमम कंसंट्रेशन मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में मिलेगा। ऐसा क्यों है? ठीक है। देन नॉट एबल टू वर्क विद द फुल पोटेंशियल, ठीक है, हमारे पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है लेकिन हम एबल नहीं है उस पोटेंशियल के साथ वर्क करने में, तो वहाँ कहाँ प्रॉब्लम है? ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंदर लार्ज कंसंट्रेशन क्यों मिलता है। तो रिलेटिव एडवांटेज मिलेंगे। मैंने बोला कि कंसंट्रेशन दैट मीन्स लोकेशन, और किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन वहाँ पर क्यों है इसके लिए आपको फैक्टर्स पे जाना होगा। तो ज़्यादा सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली फैक्टर्स को थिंक कीजिए कि फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू लोकेट एनी इंडस्ट्री। सो कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे जो रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर हैविंग द लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन द Chota Nagpur Plateau. So these are the factors. We have relative advantage to establish the iron and steel industry into the Chota Nagpur Plateau. For example, the low cost of the iron ore, just because iron ore found in the Chota Nagpur Plateau, ठीक है, so maximum iron ore मिलता है वो Chota Nagpur Plateau मिलता है. So we have iron and steel industry in Chota Nagpur Plateau. Then other best quality raw material also available in these area. For example, coal also available, limestone available, manganese available. So these factors are responsible to establish the iron and steel industry into Chota Nagpur Plateau. Then we have cheap labor in this area from the proximity or the nearby states. For example, बिहार से cheap labor मिलेंगे आपको, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे cheap labor मिलेंगे. So we have cheap labor in that area. So it is suitable to establish there. Then we have also good transport link. Okay, for example, road also well developed in well developed condition in that particular area, and we have transport link of railway also. For example, Mumbai to Kolkata railway line and Delhi to Kolkata railway line. ठीक है, ये दोनों रेलवे लाइन जो है वो कनेक्ट करती है छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन को विद अदर नोड्स ऑफ द इंडिया. ओके, पोर्ट्स भी आपको मिलेंगे, पोर्ट्स भी अवेलेबल हैं. सो आपको रोडवेज, रेलवेज एंड वाटरवेज तीनों की अवेलेबिलिटी है वहाँ पे. इस वजह से छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंदर आपको क्या मिलेगा? लार्ज कंसंट्रेशन मिलेगा. किसका? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का. लास्ट, होम मार्केट.
छोटा नागपुर प्लेटिव रीजन के अंदर आपको होम मार्केट मिलता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है हमारे होम मार्केट के अंदर। तो ये होम मार्केट क्या करता है, इन इंडस्ट्रीज़ से प्रोक्योर करता है आयरन एंड स्टील को, और वहाँ पे फर्दर प्रोडक्शन होता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन द छोटा नागपुर प्लेटिव। क्लियर। नेक्स्ट पे देखिए, नॉट एबल टू परफॉर्म विद फुल पोटेंशियल, क्यों नहीं कर पा रहे हैं। सो सबसे जो इम्पोर्टेंट है इस आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के अंदर, जितने भी रॉ मटेरियल यूज में लिए जा रहे हैं ऑल आर अवेलेबल इन द इंडिया, ठीक है। लेकिन कोकिंग कोल, ये ध्यान में रखना है, कोकिंग कोल इज़ नॉट अवेलेबल, ठीक है। ये केवल और केवल छोटा नागपुर प्लेटिव रीजन में, वहाँ भी लिमिटेड एक्सटेंट में मिलता है, ठीक है। जितना भी कोकिंग कोल है वो हमें क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। सो कोकिंग कोल इज द फर्स्ट प्रॉब्लम, जस्ट बिकॉज इट्स कॉस्ट इज हाई, लिमिटेड है तो कॉस्ट हाई होगी, और इंपोर्ट करेंगे तो उस पर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लग के उसकी कॉस्ट हाई हो जाएगी। एंड इट फाउंड इन अ लिमिटेड एक्सटेंट। then lower productivity of the labor, just because we have unskilled or semi skilled labor, ठीक है, skilled नहीं है, so they have low productivity। तो लो प्रोडक्टिविटी लेबर तो एबंडेंट है हमारे पास, ठीक है, मैक्सिमम लेबर अवेलेबल है, लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो लो है। देन थर्ड वन इज़ द इरेगुलर सप्लाई ऑफ द पावर। पावर की सप्लाई इरेगुलर रहती है, जो कि इंडस्ट्रीज़ को हार्मफुल है, उनके प्रोडक्शन को स्टेगनेंट करती है। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सप्लाई पावर सप्लाई जो है वो रेगुलर हो, ठीक है। देन इन लास्ट पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सेज रोडवेज है, रोड्स वगैरह, ट्रांसपोर्ट वगैरह डेवलप्ड हो। ट्रांसपोर्ट भी यदि डेवलप्ड है तो बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब किसके पार्ट हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, ठीक है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट होते हैं। सो वी हैव पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। सो इन पॉइंट्स की वजह से हम क्या करते हैं, हमारे पोटेंशियल के साथ, फुल पोटेंशियल के साथ वर्क नहीं कर पाते हैं। क्लियर। तो आज के लिए इतना काफ़ी होगा। नेक्स्ट जो हमारा जो वीडियो होगा उसमें कुछ 1 से 2 इंडस्ट्री हैं, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री, और वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।